are going to discuss binary arithmetic. Binary arithmetic. Do you know what are arithmetic operations? What arithmetic operations? Yes, sir. Plus, minus, multiply, divide. Yes, these all operations, addition, subtraction, multiplication, division, they are known as arithmetic operations. And in the usual mathematics, we all know how to add, subtract, multiply, or divide the decimal values or the numbers in decimal system. But how we can do arithmetic operations or arithmetic calculations with binary numbers is actually the topic that we are going to discuss today. Okay, so okay, since this number system contains only 0 and 1, so whenever we are adding or subtracting or multiplying or dividing, so see binary arithmetic. Well, first of all, let us take addition. Since this number system contains only two digits 0 and 1, so there, there will be only four cases which we have to consider while adding binary numbers. And what will be those cases? Those cases will be that 0 plus 0 will be a 0. Okay? Yes, sir. 0 plus 1 will be a 1. 1 plus 0 will be a 1. and 1 plus 1 will be 1. no. 0. देखिए 1 प्लस 1 वो आपने जो लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़े थे जहां पर और गेट तो और गेट का काम था एडिशन बट दैट वाज लॉजिकल एडिशन लॉजिकल एडिशन इन द सेंस कि at that place one was considered as a true value only, not a numeric value. But here when we are adding two numbers, we are considering one as a numeric value. Because one in decimal number system and one in binary number system, they are written as same. If I write a decimal number 1 and convert it into binary, it will give me only 1. No? So 1 in binary is equivalent to 1 in decimal. So, but the difference is that when we add decimal numbers, so 1 plus 1 becomes 2. But here in binary number system, you know that we do not have a digit other than any other digit except 0 and 1. So we cannot write the addition as 1 plus 1 equals to 2. But what we can do, if we add 1 and 1 in binary, say if I say we add 1 and 1 in binary. So you know that 1 and 1 binary 1 is equivalent to decimal 1. They are both equal. If you write 1 in binary, it will be 1 in decimal. So when you add 1 and 1 in decimal, what you get? 2. But in binary, how you can write 2? What will be the equivalent value in binary number for decimal 2? So 10. 1 0. This 1 0 is 2 in binary number system. So whenever we are adding 1 and 1 which are binary digits, so we get a result as 10. 1 0. Similar to our usual number system, I mean that decimal number system. What you do if you sometimes add like this, okay? So what you do 9 plus 5 becomes 14. But from this 14, you take only the rightmost digit as the result. 4. And what you do, you just carry over this digit to the next.
तो 1 यहाँ पर आ गई आपकी. Then you add 1, 6 and 2, 9 like this. So similarly, what we do, whenever we will add two binary digits 1 and 1, the result will be a 0 because we know that 1 plus 1 is 10. So the result will be 0 and this will be a 0 Carry. With a carry 1. Is this clear? Yes, sir. है ना? So let us take an example. Say I am going to add 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1. Say like this, है ना? This is our question. So you know 1 plus 1 will be a 0, है ना? And 0 with a carry 1 here. Now you see we have 1 and 1. 1 and 1 is 10 and 10 plus 1. 10 plus 1 will be double 1. So here double 1 में आप 1 will be the resultant value with a carry 1 over here. Now again 1 plus 0 is 1. दोबारा बताना सर. हाँ? सर एक बार और बता दो. देखो 1 plus 1 will be 10 and 10 plus 1 मैंने बता दिया इन बाइनरी क्या होगा. 1 plus 1 10 and 10 plus 1 क्या होगा 11. तो 11 में 1 आपने यहाँ किया and you just carried this one over here. Now see 1 plus 0 1 and 1 plus 1 again 10. Again a carry here. 1 plus 1 plus 1 11. Carry 1. 1 plus 1 plus 1 11. Again a carry 1. 1 plus 0 here 1. 1 and 1 plus 1. Is this clear or any doubt anybody? Sir, clear. Clear, sir. Clear, sir. Clear है ना? Okay. So shall I give you a question now? Yes, sir. You just try to add these values. 1 1 0 1 1 plus Which we are? 1 0 1 1 1. Add these two values and let me know the answer. The 1 1 0 0 1 0. 1100010. The 1 1 ये आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. 1 1 0 0 1 0. सही है? अच्छा. Sir. You can check your result just by simply converting this number to decimal. What will be the decimal equivalent of 11011? कितना होगा? How much will be 11011 in decimal? 5505.5. ऐसे नहीं, this binary number 11011 converted to decimal number, what will be the decimal equivalent? 27. 27. And this one? 23, sir. It will be 20. 23. And when you add 27 and 23, how much you will get? 50. 50. So now check whether this value 110010 is equivalent to 50 or not. Yes, sir. It is equivalent.
आप देखिए ये है ना सर आ रहा है 110010. So if you write 1 2 ja 2 2 ja 4 2 ja 8 2 ja 16 2 ja 32. So you will add only 32, 16 and 2. So 32, 16, 48 and 2, 50. So this value is actually 50. Correct? Correct, sir. So shall I give you another one? Another question? Yes, sir. of course. Okay. चलिए. ये आप करके बताइए. ऐड करिए जरा. जस्ट ऐड भाई आप देखिए मैं आपको एक समझा देता हूँ. 1 + 0 + 1 1 1 + 1 10 10 + 1 11 और 11 + 1 क्या होगा? आप अगर 11 और 1 ऐड करें 20. 11 + 1 कितना होगा? 12. 2 होगा 12 तो बेटा वो उसमें होता है डेसिमल में. अभी बाइनरी की बात. देखो 11 + 1 क्या होगा? सर 100. ये होगा ना 100. 11 + 1 100 ही तो होगा. तो 0 + 1 1 1 + 1 10 10 + 1 11 11 + 1 100. तो 100 में आप 0 यहाँ से इसमें रिजल्ट में लिखेंगे एंड 10 विल बी द कैरी ओवर वैल्यू. सही है. 10 + 1 11 11 + 1 100 100 + 1 कितना हो गया? 0. 100 + 1 101 हो गया और 101 + 1 कितना होगा? 1000. 1000. बेटा 10. 110. ये होगा ना 110. Yes. होगा कि नहीं? तो यू जस्ट पुट 0 हियर और कैरी ओवर क्या हो गया? 11. अब 11 + 1 100 100 + 1 101 101 + 1 110 again. So 0 here and 11 here. 11 + 1 100 100 + 1 101. So 1 and 10 will be carried over here. 10 + 1 11 11. 100 101 10. 110 और 110 1001. 110 में 1 जोड़ो कितना आएगा? 111. हाँ तो 1 1 1. ये आंसर हो गया. इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? सर और देखो अभी अगर आपको एक सरल मेथड में बताता हूं ऐसे करने का. आप ये जो नंबर हैं आप ऐसे तो जोड़ सकते हैं 1 2 3 4. सही है. तो 1 2 3 4 हो गया. Is 4 an even or odd? even So whenever you get the result as even, you have to put a 0 here in the result. तो हमने देखा 1 2 3 4 4 माने even. So we just place the 0 in the result. And what is the half value of 4? 2. So 2 will be carried over here. सही है. Now add 2 3 4 5 6. 6 हो गया. 6 even है odd है? Even. तो अगेन even है तो 0 रखिए और 6 का हाफ कितना हुआ?
3. 3. Now 3, 4, 5, 6. 6 again even है तो 0 रखिए और Even. 0. 3. 3. 3, 4, 5. 5 odd है 1. 1. तो 1 रखिए। 1. 5 का आधा कितना होगा? 2.5. 2.5. 2.5. But you have to take only the integer part. 2.5 नहीं लेना। 2.5 का integer part कितना है? 3. 3. 2 है only. 2. Now add 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 जो आ रहा है आंसर, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। How you will write 7 in binary? Sir, 1 1 1 110. 7 will be 1 1 1. तो ये आंसर आपका आ रहा है। पहले भी Yes, यही sir. आ रहा था। Yes, sir. तो इस तरह भी कर सकते हैं आप। ये थोड़ा आपको सरल सा पड़ेगा। क्यों? Yes, sir. Now is Yes, sir. binary addition clear to all of you? Yes, sir. सर एक और दे दो सर क्वेश्चन। एक और दे दूं? चलो लो, यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलो ऐड करके बनाओ। What will be the addition? 1 0 1 0 0 1 0 1. सर प्लीज राइट आंसर। अभी कनेक्ट कर रहा हूँ मतलब। देखो ये आना चाहिए। Yes. Yes sir, सही है। 1 0 0 1 0 0 1 0 1। Yes sir. सही है? Yes sir. अब कितने लोगों का गलत आया है में से? किसी का गलत भी आया है कि सभी के सही हैं? सर मेरा Yes, sir. सभी. यस सर। अभी सब्ट्रैक्शन पे बात करूं मैं फिर। अब मैं सब्ट्रैक्शन आपको बता रहा हूँ, ठीक है? Binary subtraction. So again we have only 4 cases, है ना? तो 4 cases में 0 minus 0 क्या होगा? What will be 0 minus 0? 0. 0 1 minus 0? 1. 1 1 minus 1? 0. And 0 minus 1? -0. 1. सर ठीक है? Now here is a problem actually because we are subtracting a greater value from a smaller one. जैसे मैं ये कहूं ये करिए, है ना? तो व्हाट यू डू कि 4 में से तो 7 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो व्हाट यू डू कि आप यहाँ नेक्स्ट डिजिट से बोरो लेते हैं। बोरो कितना उधार लेते हैं? कितना इस नंबर सिस्टम का 10. बेस है? इस नंबर सिस्टम का आई मीन डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है। तो हम नेक्स्ट डिजिट से क्या लेते हैं? 10 बोरो करते हैं और 10 को इसमें ऐड कर देते हैं 4 में, 14 हो जाता है। 14 minus 7 आपका 7 बच गया।
और जो जहां से हमने बोरो लिया था उस डिजिट में एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही होता है। यस तो सर। एक सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये 0 हो गया, 1 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 0 हो गया, है ना। तो इसमें भी whenever we are subtracting a 1 from 0, so the result will be 1 with a borrow 10 from the next zero. Now this 10 doesn't mean the decimal value 10. What it means? 10 in binary, what we call 10 in binary? 1 plus 1. 10 in binary is equivalent to which value in decimal? 2. हाँ, तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस वाज 10, that's why we borrowed a 10 from the next digit. अब यहाँ तो आपको उधार 10 तो मिल नहीं सकता बिकॉज इस नंबर सिस्टम का बेस ही 2 है, तो यू विल बोरो 2 फ्रॉम द नेक्स्ट डिजिट। और 2 जब आप बोरो किए, जैसे आपने ये, अब यहाँ से हमने 2 बोरो किया तो ये हो गया 2 + 0 कितना हो गया 2, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने तो बचेगा क्या 1। तो यही मैं कहने का मतलब है, 10 बोरो करने का मतलब यहाँ 10 डेसिमल नहीं है, यहाँ 10 का मतलब है 2 आपने बोरो किया, ठीक है। Now just try to solve this subtraction. 1 0 1 1 1 0 1 में से सब्ट्रैक्ट करिए, चलिए करके बताइए, या एक मैं करके बता दूं पहले आपको, ठीक है। देखिए 1 minus 1 will be 0. अब 0 minus 1 will be 1. यहां से आपने बोरो लिया। आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आप उधार उसी से तो ले सकते हैं जिसके पास कुछ हो देने को, जिसके पास होगा ही नहीं कुछ देने को, वो उधार कैसे दे सकता है। यहाँ आपका 1 है, तो 1 का मतलब है 1 is the greatest value in binary number system, तो इसका मतलब है यहाँ से उधार लिया जा सकता है। अगर ये 0 होती तो ये तो उधार दे नहीं सकती थी, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम नेक्स्ट डिजिट पे जाते उसकी, जैसे डेसिमल में करते। तो अब ये यहाँ से हमने बोरो किया तो 0 minus 1 1 हो गया, यहाँ क्या रह गया, यहाँ क्या हो गया 0 हो गया ना। तो ये 0 minus 1 अगेन 1 तो हमने अब यहाँ से बोरो लिया इधर, तो करेगा, तो 0 minus 1 फिर 1 हो गया। अब यहाँ क्या रह गया 0 0 minus 1 अगेन 1 हो गया, 1 है ना। यहाँ से लिया होगा, अब यहाँ क्या हो गया 0 0 हो गया, तो 0 0 0। अब 0 minus 1 1 इधर से उधार लिया, बोरो करेंगे, और 0 minus 0 अब क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो ये आपका रिजल्ट इसमें आएगा, है ना। आप चाहें तो इन वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट करके रिजल्ट को भी डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, तो यू कैन चेक दैट। मैं एक आपको और दे रहा हूँ क्वेश्चन, अपने आप करके बताइए। इसकी कोई ट्रिक नहीं है जैसे एडिशन में है ऐसी? ट्रिक तो ये है कि आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये ऊपर वाला आ जाना चाहिए। भाई सब्ट्रैक्शन में आपको 2 वैल्यूज को ही सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाएगा, एक से ज्यादा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे ना। एडिशन तो आपको मैंने 5 वैल्यूज दे दी, आप इन दोनों को ऐड करिए, अगर ये आ रहा है ऊपर वाली वैल्यू देन इट मींस दैट योर आंसर इज करेक्ट। एडिशन तो आपको आते ही नहीं समझ, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ,
चलिए आंसर बताइए फटाफट। सर मैं 2 डिजिट के बीच में बहुत हो गए। अब देखो यहाँ मैं समझाता हूँ आपको, चलिए 1 माइनस 0 इज 1, ये तो सही है। यस सर। अब 0 माइनस 1 जब हम करने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि नेक्स्ट डिजिट के बाद तो कुछ उधार देने को है ही नहीं। तो हमने उसके अगले डिजिट को देखा कि यहाँ कुछ है, तो यहाँ से हम उधार लेंगे, यहाँ से इसको लिया और यहाँ से क्या लिया इधर। तो अब आपका 10 माइनस 1 ये तो आ गया 1, ठीक है। 1 अब इधर 0 का क्या हुआ, से फिर से 0 हो गया है? ये फिर से 0 हो गया सर, ये वाला। ये 0 नहीं हुआ। अब आप ये देखिए, मान लीजिए कि ऐसे है 2000 में से 17 घटाना है? तो इसमें आपने क्या किया, यहां से उदाहरण ले हुए ना इधर, क्योंकि इनके पास तो कुछ है ही नहीं देने को, है ना। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ 10 आपने लिया, 10 माइनस 7 3, यहाँ क्या रह जाता है 9 रह जाता है ना। जितना आपने उधार लिया था 10, उसका एक कम रह जाता है ना। यस सर। सर अब आप ये समझिए कि यहाँ से आप 2 उधार इधर दे रहे हैं और वो 2 उधार इधर जा रहा है, तो यहाँ तो 2 में से एक आपको 1 मिल गया, यहाँ कितना रह जाएगा 1 1 भाई। 2 में से 1 घटा दोगे ना तो 1 रह गया ना यहाँ। तो ये आपका हो गया 1, 1 माइनस 1 हो गया 0। और ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। तो 0 माइनस 1। अब अगेन आपके पास यहाँ से उधार लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, इधर, क्योंकि 0 माइनस 1 मतलब यहाँ से इधर और यहाँ से इधर 1। तो 0 माइनस 1 आ गया 1, ये क्या हो गया 1 0 हो गया सर, ये 1 हो गया। 1 माइनस 1 0, ये 1 हो गया। 1 माइनस 1 0 और ये 0 सर एक हाँ सर, ये फिर 0 नहीं हुआ, इसने भी तो पूरा उधार दे दिया ना अपना, इसने एक ही तो पार्ट दिया अपना 1। उधार यहाँ से आया है। अब ऐसे यहाँ क्यों नहीं समझते हो आप? डेसिमल नंबर में भी तो आप यहाँ 9 रहेंगे ना। अब अगर इसने 10 है यहाँ से उधार यहाँ दे दिया होता 10, तो यहाँ तो फिर 0 ही बचता फिर 9 है। समझ में आ रही है बात आपके? नहीं यस सर। अगर आपने 10 ही यहाँ से उधार लिया है, 10 की 10 यहाँ दे दिए, तो इधर तो फिर 0 ही बचना चाहिए ना। 9 आप ले रहे हो, उसको एक कम ले रहे हो ना बेस से, वही मैंने आपको समझाया यहाँ पे। और देखिए सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है, आपको कुछ ये चक्कर में नहीं पड़ना। आप जैसे मैं ये कहता हूँ कि सपोज ये 1 माइनस 1 तो 0 है, 1 माइनस 1 0 है ना। अब आती है बात 0 माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि उधार कहां से आएगा, इस जगह से आएगा, है ना। तो इस जगह से आएगा यहाँ पर, समझ में आ गई? तो इतनी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज हैं, इन सबको उल्टा कर दीजिए। ये 0, ये 1, ये 1, उल्टा कर दिया आपने। 0 है तो 1 कर दिया, 1 है तो 0 कर दिया। 0 माइनस 1 ये तो 1 आ गई। अब आप देखिए कि इसको भूल जाइए, सही है। अब 1 माइनस 1 आपका क्या हुआ 0, 1 माइनस 0 अगेन 0, सॉरी 1 माइनस 1 इज 1, यहाँ बचा 0। अब फिर दिक्कत है, यहां से आएगा आपका उधार, इस जगह से, यहां से किधर जाएगा, यहाँ। तो आपकी ये डिजिट बचती हैं,
इनको फिर उल्टा कर दीजिए, ये 0 1 1, तो 0 माइनस 1 तो यहाँ 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 एंड 0 माइनस 0। समझ में आ रही है बात कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट क्लास। जिस प्लेस से आपने बोरो किया है वहां तक की सारी डिजिट्स को आप चेंज कर दीजिए, 0 को 1 से, Yes, sir. 0 से, है ना? बस इतना, ये आपको अब जल्दी समझ में आ जाएगा आई थिंक। आई होप कि these two topics, subtraction and addition, Yes, sir. clear to all of you. And in the next class we will talk about little multiplication and division. Okay? Till then, Yes, have a sir. nice day. Have a nice day. Thank you very much. Thank you, sir.